चलें जी, आफ्टर रिवाइजिंग द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स नाउ, अब हम एक सवाल कर लेते हैं, इसका नाम है टेक देयर फॉर यू। ठीक है, इस सवाल से कंपेरेटिवली हमारे जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये कवर भी हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर ई मार्केटिंग वाला एरिया भी सॉर्ट ऑफ टेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो आए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह सॉल्व करने का टाइम दूंगा और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। टेक देयर फॉर यू, TT4U, is a firm of information technology consultants founded 20 years ago. Initially offering advice on computer efficiency and security, the company has expanded to offer a range of services, including technology support and data hosting. It currently employs 75 staff members, which has grown from 6 since its establishment. The company has based its success in the past on its good knowledge of clients' business and its ability to match the solutions it provides. Company has a diverse client base operating in a wide variety of industry sectors. The 4 consultants who initially founded the company remain on the board in the key executive roles. The board is constituted as follows. ये बोर्ड के हमारे पास नाम है, ठीक है। Below board level, operational staff are allocated to one of the 3 teams serving particular types of client. The teams are led by the relevant founder director for that team. 2 years ago, the company achieved a listing on its national stock exchange for smaller companies. The company is compliant with the corporate governance code enforced by the stock exchange. Founder directors continue to own a majority of shares, but the company now also has external shareholders. ठीक है, अगले पैराग्राफ पे आ जाओ। The company's CEO believes that the company needs to undergo an internal transformation in order to be able to retain current clients. Change management की बात हो रही है भाई, एक internal transformation से गुजरना है आपको and deliver the expansion required to obtain a full listing. She believes that the company's current structures are now insufficient to respond quickly enough to changes in the external environment and meet clients' evolving demands. Company's board has decided to engage an external consultancy firm, Stepfield, to help in evaluating various strategic options and advising on decisions. You are the leader of the team responsible for producing sections of a report. इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जिबिट्स मौजूद हैं। डायरेक्टर्स मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है जिसमें इश्यूज के बारे में बात हुई है। ठीक है, समरी ऑफ क्लाइंट अप्रोच, blog on IT consultancy sector, extract of results of client survey, discussion of threatening letter about TT4U, and appraisal of cloud services investment prepared by the recently appointed assistant to the finance director. The case requirements are included in the task below. क्या क्या requirements हैं हमारी? The company's CEO is concerned about the possibility that major contracts will not be won or renewed, and would like your views on what the main risks are for the company. Prepare briefing notes for the board which analyze the main risks which threaten company being awarded new contracts and retaining current contracts. ठीक है, क्या रिस्क है यहाँ पे? रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज थोड़ी सी इधर टेस्ट हो जाएगी। Prepare a section of your report which evaluates 2 strategic options. ये यहाँ पर हमारे पास strategic options हैं। At the recent directors meeting, the information technology director proposed that the company should develop new services in relation to Internet of Things. The services director proposed that the company should focus on winning more government sector work. CEO offer wants your report to include consideration of these 2 strategic options. जो इन्होंने ऑप्शंस दिए उसके बारे में बात करनी है। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब होता है? वैसे जो इसका नाम है बाज़ाहिर वही इसका मतलब भी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मुराद फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक ऐप के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, या फॉर एग्जांपल आपकी घर की लाइट्स होती हैं या मशीनरी होती है या कोई इस तरह का इक्विपमेंट होता है जो ऐप के थ्रू कंट्रोल होता है, स्मार्ट इक्विपमेंट होता है, तो वो इंटरनेट से चल रहा होता है। ये जो चीजों का इंटरनेट है इसको बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटर होने के बारे में इन्होंने बात की है। इसके अलावा CEO officer would like to have an independent external view on what was discussed at the meeting about the threatening letter. In particular, she doubts the views of the marketing director that company can simply rely on its data controls. She's also uncertain whether the company should disclose nothing to Rex Investments as the marketing director suggested. Prepare a confidential email for the CEO officer which advises on the actions TT4U can take to ensure the controls on the confidentiality. कंट्रोल्स वाली बात है। डिस्कस द रिस्क एंड एथिकल इश्यूज रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, ये भी आ ही सकता है एथिकल इश्यूज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है
The assistant to finance director has prepared a summary of the investment appraisal. कुछ financial data दिया हुआ है financial performance के perspective से. The CEO has given you a summary of the analysis and she is unsure whether it is satisfactory. She wants you to brief the board on how the new services should be e-marketed. ठीक है, तो आपको उसके लिए evaluate करना है investment appraisal को. ठीक है, और बोर्ड के लिए ब्रीफिंग नोट्स बनाना है कि कैसे ई-मार्केटिंग can be used to attract and retain clients for the company's new cloud-based services. यहाँ पे ई-मार्केटिंग वाली चीज आ गई. फिर एक सीईओ के लिए ईमेल बनानी है जिसपे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो ताकि कंपनी की प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन की जा सके, इसका स्ट्रक्चर चेंज किया जा सके और स्ट्रक्चर चेंज में आपकी हेल्प ली जाए. और एक लेटर बनाना है अपने एम्प्लॉइज के लिए जिसमें पूरी अप्रोच लिखनी है. ठीक है, अच्छा ये गवर्नेंस वाला एरिया है, ये अभी करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमारे पास एग्जिबिट्स आ रही है. ठीक है, तो एग्जिबिट 1 से लेके 6 तक हमारे पास एग्जिबिट्स है और मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं जिन रिक्वायरमेंट्स की मदद से जिन रिक्वायरमेंट्स को हमने एड्रेस करना है एग्जिबिट्स की मदद से. ट्रांसक्रिप्ट ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग अबाउट इश्यूज टू बी डिस्कस्ड विद स्टफील्ड कंसल्टेंट्स. सीईओ कहते हैं आई हैव कॉल्ड दिस मीटिंग टू डिस्कस द एरियाज दैट यू वांट Stuffield consultants to consider. I know that some of you feel that Stuffield will be looking at areas of our business where we shouldn't need advice and they may exceed their remit. Nevertheless, some of our investors have communicated the view that we need external advice about our business. They feel that we are too reliant on existing business from our long-term contracts. We should be providing more services and winning new clients. We have advanced discussions on developing our new cloud-based services. This will enable us to extend the cloud-based services we provide. उसी एरिया को ये एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं. You will recall these include provision of private clouds for specific clients and cloud integration services, enabling clients to connect their data and applications and give them more flexible access to their data resources. We have available an appraisal of our planned investment का appraisal दिया है इन्होंने. As you're aware, I've been on sick leave, so didn't prepare the appraisal myself. Johan, who recently joined the department to assist me, carried out the appraisal. I haven't reviewed the appraisal in detail yet. However, I see a glance at the payback period is just outside the 3-year limit that we set. 3 साल का. Marketing director. I had hoped to come today with some proposals for marketing cloud-based services. However, I've been spending a lot of time dealing with Rex Investments, which, as you know, is a very difficult client. I think our launch of these services must make a big impact as a means of attracting new business. CEO कहता है, as you remember, I asked for suggestions from yourselves about areas where we can expand further. I've received 2 proposals. 2 proposals मिले हैं. IT director कहते हैं we need to look beyond cloud-based services and expand in an area where we can show we can provide fresh solutions. I would be very excited about us developing more expertise and services relating to the Internet of Things. There is massive potential for extending internet connectivity beyond standard devices to everyday objects such as household appliances, making the most of the data that they can generate. These are so many possible sectors: health, construction, transport, agriculture, where there are opportunities that we can explore. Yeah, IT director कह रहा है. Services director, I think we should focus on winning more government sector work. ये कह रहे हैं government sector काम मिल जाना चाहिए. A lot more is available now, and we already have some work on which we can build. We have the size and range of services to be looking at winning much larger contracts. ये कह रहे हैं भाई आप government वाली सूरत हाल पे जाएं, trusted partner है, पैसे जल्दी दे देता है. Now I would like us to consider the issues raised by the recent client survey. I very much regret that we haven't carried out a survey like this for some years. For me, it highlights we need to transform our business. यहाँ change की बात हो रही है. ठीक है. SD कहते हैं, I assume you will be considering how staff should be persuaded to buy into the transformation. And CEO कहते हैं, I shall also be looking at how we operate as a board. These directors currently combine board responsibilities और ये governance वाली बात हो रही है सारी. चलो ये एक exhibit हो गया. Exhibit 2 में summary बता रहे हैं. Exhibit 2 में हमारे पास ये summary आ गई है. ठीक है, किस तरह से ये अपने चेंज को ड्राइव करेंगे उसके बारे में बात हो रही है. सबसे पहला मिशन ड्राइविंग स्ट्रैटेजी इन अट्रैक्टिंग क्लाइंट स्टेक होल्डर्स, participation of client stakeholders enhancing our organization, enabling clients to realize personal organizational potential, building on the knowledge and experience, taking client stakeholders on a journey beyond existing boundaries to transform their operations. फिर इसके बाद ethical grounds है और data focused approach है. अच्छा जी, इसके बाद एक ब्लॉग है IT consultancy sector के ऊपर. Not just services, but service. How can IT consultants stand out? IT consultants are struggling to come to terms with their clients take for granted.
The days when they can sell themselves on the basis of being practical business advisors rather than IT experts are long over. Consultants need not bother tendering for work unless they can combine strong client and business sector knowledge. आगे कहते हैं innovation के बारे में, anyone who is marketing themselves as having distinctive capabilities in helping clients set up on the cloud has clearly been left well behind. Clients are now expecting the full package of cloud maximization services. ठीक है, फिर ये कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या ऐसा एरिया है जो डेवलप हो सकता है. The Internet of Things extending connectivity and networks to traditionally non-internet connected objects such as cars and household lights has been the big development for some time. चीजों में इंटरनेट डाल दिया जाए. However, a number of sectors of clear needs for enhanced communication and monitoring. The medical sector has been eager for applications which enable remote health monitoring and notifications if emergencies arise. The building sector has been keen to develop devices which oversee electronic systems within homes and offices to detect fire risk or wasteful energy usage. ठीक है. Client service is still important, बिल्कुल important है. ठीक है, ये वाला हो गया. इसके बाद exhibit 4 है हमारे पास. Extracts of results of client survey. अच्छा जी. Service provision flexibility. Service provision was exceptionally good when they first started advising us, but now we just seem to be getting the basic service. अब आप बुरे हो गए. Innovation, the company seems good at and comfortable with providing the same services that it has always provided. कोई innovation नहीं है. Information provision for an IT consultancy, the website is really poor. It lacks detailed information about services, difficult to navigate. Its website does look old-fashioned and hasn't changed much for ages. Knowledge के बारे में कहा, they appear to know our business well and how to make best use of technologies. I mark them down because they don't appear to know about their own services. Don't appear to know about their own services. Responsiveness. Emails are never answered. Mostly बुराई feedback है. They often answer the question they wished you had never asked rather than the question you did ask. चलो यहाँ पे भी बुराई. Proactiveness, we call them, they never call us. I would have liked them to have told us that we needed to invest in new systems before our old systems became too slow and unreliable. Exhibit 5 में threatening letter इन्होंने बताया customer ने दिया इनको Rex investment है. We have had an anonymous threat to reveal confidential data on Rex investment unless we pay $20,000. Surely we have received threats like this before and nothing has come of them. We have, but this is much more specific threat. It is quite detailed about the data. We do hold the data and it is confidential. We must have all the necessary controls in place. Antivirus software, passwords, firewall, वगैरह, ये सारी चीजें. I'm confident that the controls we need are there. Then we don't need to pursue this further. Whoever making the threats didn't get the information from us. We are computer consultants. Of course, we have complete and fully functioning controls. The one thing I would say is that we shouldn't tell Rex Investments about this. As you know, they are largest client. Relations with them are being difficult. At the present, if we tell them, it shows we don't believe our own systems. CEO कहते हैं, I nevertheless believe that this could be a serious risk for us. I don't think we can just say that we have controls. We need to have strong assurance that they're operating as they should be. फिर यहाँ पे एक investment appraisal आ रही है. NPV calculate EVA, sales, contribution, marketing, other fixed cost. Pre-tax cash flows आ गए, tax paid आ गया है, post-tax cash flows आ गए, investment आ गई, terminal value आ गई. ये terminal value infinite होती है. ये बेसिकली परपिचुटी की प्रेजेंट वैल्यू होती है. आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, R/I, कि ये वाला जो कैश फ्लो है कंटिन्यूड रहेगा तो R/I की क्या वैल्यू होगी. फिर डिस्काउंट फैक्टर लिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज दिए हुए, ये इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है. ठीक है, 1 से 4 साल तक, और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है बाकी 5 से 10 साल तक. ठीक है, 1 से 4 साल तक में इनकी ये इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हो रही. यहाँ पर एक वर्ड जिक्र हुआ है, तुम लोग ने अपनी अर्लियर स्टडीज में नहीं पढ़ा होगा शायद, जिन्होंने बीएफडी लिया उन्होंने पढ़ा, जिन्होंने बीएफडी ना लिया ना पता हो. पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि भाई जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने इस धंधे में इन्वेस्टमेंट की है, वो कब तक रिकवर हो रही है. हम कहते हैं ना कब तक इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाएगी. उर्दू में नॉर्मली इस तरह बात करते हैं लोग. आप किसी कारोबारी शख्स को सुने उस तरह बात करते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट कब तक बाहर आ जाएगी. दैट इज बेसिकली पे बैक पीरियड, कि कितने टाइम में मुझे अपना बेस कैपिटल वापस मिल जाएगा, फिर बाकी प्रॉफिट आता रहेगा, मसला नहीं है. तो ये जो 10,000 है, ये शुरू के 4 साल में तो नहीं रिकवर हो रहे हैं. 4 साल की एनपीवी तो कम है. हाँ, बाद में रिकवर हो रहे हैं. ठीक है ना, ये बाद में रिकवर हो रहे हैं, शुरू के 4 साल में तो रिकवर नहीं हो रहा है. ठीक है, ये हो गई आपके पास. Sales are based on expected increase in markets. Client services contribution assumed to be 55%.
Market cost is assumed to increase, tax rate 25%, terminal value assumed, realizable value of services are no longer viable for after 4 years, discount factor of 6% is after tax interest rate, payback की calculation यहाँ पे इन्होंने की हुई है 3 years and 1 month, और पॉजिटिव कैश फ्लो दे रहा है, पेबैक पीरियड स्लाइटली ग्रेटर देन द टारगेट। डायरेक्टर्स का टारगेट होता है 3 साल से ज्यादा का टारगेट है। Nevertheless, sensitivity analysis should be carried out to determine the probability of loss. ये आपके SPM के एरिया में नहीं है। सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली ये देखते हैं कि अगर कोई वेरिएबल चेंज हो जाए तो बाकी वेरिएबल्स में क्या फर्क आएगा, यानी अगर सेल्स प्राइस में एक पर्टिकुलर अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाए तो बाकियों में क्या फर्क आएगा। ठीक है, ये हमने पूरा सिनेरियो ओवरऑल लेवल पे एटलीस्ट समझ लिया। ठीक है, हाँ भाई, यहाँ पे कौन से ऐसे रिस्क हैं? व्हाट आर द मेन रिस्क which threaten the company from being awarded new clients and new contracts? सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा यार, ऐसे में अकेला अकेला बताता रहूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जी भाई, एनीवन? क्या रिस्क यहाँ पे नजर आ रहे हैं? कोई कंट्रीब्यूट करेगा? सर अगर आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखें ना, तो सबसे बड़ा मसला यह है कि कंपनी वक्त के साथ साथ इनोवेट नहीं कर रही। इस कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ रुझान नहीं है। इसने वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया है। जो अब ये चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के लिए हो सकता है क्योंकि कंपेटिटर ऐसा आ जाए जो इनसे बेहतर हो। फिर ऑपरेशनल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक के बाद ऑपरेशनल लेवल पे इनके क्लाइंट्स की तरफ से भी कोई खास ऐसा रिस्पांस नहीं है, कोई खास अच्छा फीडबैक नहीं है। क्लाइंट्स यही बोल रहे हैं कि भाई आपके सिस्टम पुराने हैं, ओल्ड हैं, आप हमें जवाब नहीं देते, आप हमारी ईमेल्स का रिस्पांस नहीं करते, आप जो है वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में सर्विसेज के अंदर कोई नई चीज नहीं लेके आ रहे हो, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में आपके एम्प्लॉइज को नहीं पता होता। तो ऑपरेशनल लेवल पे भी ये मसला है, ये रिस्क है जो काफी हद तक इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल करने में इन्हें नाकाबिल कर देगा, अनसक्सेसफुल कर देगा। तो वो वाली बात यहाँ पे हमें जो है वो नजर आ रही है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी और एट द सेम टाइम ऑपरेशनल लेवल पे भी। हालांकि वैसे अगर आप देखो तो कंपटीशन जो है वो, जो दूसरी कंपनीज है आईटी की, इस तरह की आर्टिकल्स जो हमने न्यूज आर्टिकल पढ़ा था, उस न्यूज आर्टिकल के हिसाब से कंपटीशन डेटा में, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इन तीनों में काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। तो ये 3 बड़े पॉइंट्स हैं जिनको आपने यहाँ पे रिस्क के तौर पे बताना है। कंपटीशन काफी आगे, आपने उस तरीके से इनोवेट नहीं किया, तो प्रैक्टिकली ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले इसके इतने ज्यादा चांसेस बहरहाल नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर है हमारे पास यहाँ पे सेकंड रिक्वायरमेंट में, इधर पार्ट नंबर सी में, कंट्रोल्स ऑन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, सिक्योरिटी रिस्क। हाँ भाई, क्या कंट्रोल्स आ सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर? आपके एसपीएम वाले एरिया में, आईसीटी के एरिया में बहुत सारे कंट्रोल्स बताए हुए हैं। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए क्या कंट्रोल्स आ सकते हैं? यार ये तो इजी है यार, ऑडिट में भी पढ़ा होगा, ये तो बताएं। थ्रेड से क्या क्या किया जा सकता है यहाँ पे? ऑथोराइज्ड एक्सेस, बिल्कुल सही है सर। कंट्रोल्स के केस में यहाँ पर आपके पास ऑथोराइज्ड एक्सेस वाली बात अपनी जगह पर है। ठीक है, फायरवॉल, एंटीवायरस, ठीक है, इस तरह का और कोई अगर मिलिशियस सिस्टम है, यूज ऑफ पासवर्ड्स, यूज ऑफ लॉग्स, ठीक है, एक्टिविटी लॉग, कब आया, कौन आया, किस तरीके से सिस्टम के ऊपर काम किया, ये वाली सारी चीजें। एक्टिविटी लॉग हो गया। इंक्रिप्शन टेक्निक्स, एक्सीलेंट, मैं यही लिखने वाला था अभी।
इंक्रिप्शन टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है कहीं पे, तो वो इंक्रिप्टेड होना चाहिए, कोडेड चेंज होना चाहिए। टू टियर सिक्योरिटी, बेहतरीन। और फिर उसके बाद पीरियोडिक ऑडिट्स, वक्तन फवक्तन आपके ऑडिट्स होने चाहिए, आपका स्ट्रक्चर चेक होना चाहिए, पीरियोडिक ऑडिट्स वगैरह ये वाली सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। और कोई पॉइंट है किसी के जहन में, एनीवन? चलो ठीक हो गया जी। रिस्क रजिस्टर्स फॉर आईटी, ये रजिस्टर तो बनाना है ना, वो इटसेल्फ रजिस्टर बनाना कोई कंट्रोल नहीं है, वो रोकेगा नहीं किसी चीज को। हाँ, उससे अवेयरनेस वगैरह हो जाएगी, ठीक है, एक तरह से तो उसको कंट्रोल कह सकते हो, लेकिन वो डायरेक्टली कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करेगा, डायरेक्टली वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है, डिस्कस द रिस्क एंड एथिकल इश्यूज। रिस्क तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है भाई, सिक्योरिटी रिस्क है, रेप्यूटेशन का रिस्क है, रेप्यूटेशन का रिस्क है, लॉस ऑफ क्लाइंट, उसका ट्रस्ट, उसका रेवेन्यू, ये वाली सारी चीजें लूज हो जाएंगी। इंटेग्रिटी, बिल्कुल सही। और एथिकल इश्यूज में यही वाली सारी चीजें, जहाँ पे आपका वो पेनल्टी वेनल्टी भी लग सकती है। एथिकल इश्यूज बहरहाल ये दोनों मिला के आपस में ही है, कंपनी का जो रेपुटेशन रिस्क है वो बहरहाल एथिकल इश्यूज में ही आ जाएगा। एथिकली भी ये चीज गलत है, इट विल ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द कंपनी, it will bring disrepute to the integrity of the company, to the character of the company, to the professionalism of the company। ठीक है, प्रिपेयर सेक्शन क्रिटिकली इवैल्यूएट्स द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और फिर उसके बाद हमारा ई मार्केटिंग कैसे हमें अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर बेसिकली एमपीवी वगैरह कैलकुलेट हुई हुई है, हम पहले ये ई मार्केटिंग वाला एरिया देख लेते हैं। हाँ भाई, ई मार्केटिंग कैसे यूज की जा सकती है कि ये और कस्टमर्स को न्यू क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के लिए अट्रैक्ट कर सके, तो बताएगा एनीवन? अभी हमने ई मार्केटिंग पढ़ा है थोड़ी देर पहले। इंप्रूविंग वेबसाइट एंड मेक इट इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके पास ई मार्केटिंग के सेक्शन में सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ई मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स अगर आप अपनाएंगे, आपकी वेबसाइट इंप्रूव हो जाएगी, इंटरैक्टिव हो जाएगी, ठीक है, इंटेलिजेंट हो जाएगी, आपके पास वो डेटा आ सकेगा, डेटा अबाउट योर कस्टमर, कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर क्या है, प्रेफरेंस क्या है, जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो क्या चीज ढूंढता है, कौन सी उसे प्राइसिंग ठीक लगती है, कौन सी नहीं लगती है, आपकी अवेयरनेस पता चलती रहेगी। यू विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन, दुनिया भर को टारगेट कर सकते हो आप, इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन, यू कैन टारगेट एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। प्रमोशन वगैरह आप चला सकते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट कर सकते हैं, कस्टमर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हैं, उसका फीडबैक ले सकते हैं, उसके फीडबैक के हिसाब से इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, ठीक है, अपनी प्राइसिंग कंपेरेटिव रख सकते हैं, दूसरे कंपेरेटर्स क्या इंटरनेट पे चार्ज कर रहे हैं, आप क्या चार्ज कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स चला सकते हैं। ये सारा का सारा बेनिफिट बहरहाल आपको ई मार्केटिंग की वजह से, ई मार्केटिंग के एंगल से रिसीव होगा। ठीक है, ई मार्केटिंग के एंगल से रिसीव होगा। आगे कहते हैं प्रिपेयर सेक्शन विच क्रिटिकली इवैल्यूएट्स द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को इवैल्यूएट करे तो आए उसको भी देख लेते हैं। क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टेबल बना हुआ है, अप्रेजल ऑफ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, दिस इज बेसिकली यार एनपीवी कैलकुलेशन का टेबल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। बेसिकली इनका जो नया बिजनेस प्रपोजल है, जो ये नई क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसके हवाले से बेसिकली यहाँ पर इन्होंने अपनी इस इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट किया हुआ है और एनपीवी कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर एक बात आप यहाँ पे देखें,
ये पूरा अप्रेजल डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस के ऊपर ये कंक्लूड कर रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब आपने जो यहाँ पे अप्रोच अपनाई है ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर, ये चूंकि बीएफडी का पेपर तो है नहीं कि मैं बैठ के नंबर्स कैलकुलेट करूंगा और उनको बोलूंगा ये नंबर ठीक है वो गलत है। यहाँ पे मुझे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो ये जो अप्रोच है, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट नंबर्स। दिस अप्रोच इज ओनली टॉकिंग अबाउट नंबर्स विच इज नॉट फेयर। यहाँ पे आपने सेल्स का नंबर तो प्लॉट कर दिया, लेकिन सेल्स कैसे, डिमांड कैसे ड्राइव होगी, उस डिमांड के ड्राइवर्स क्या हैं, उन सेल्स के ड्राइवर्स क्या हैं, कैसे आप इतनी चीज को अचीव करोगे। आपने कंट्रीब्यूशन अज्यूम कर लिया 55% का, लेकिन इसकी बेसिस क्या है, बेसिस फॉर द कंट्रीब्यूशन। यहाँ आपने ग्रोथ अज्यूम कर ली कि हम 8,000 से 10,000, 10 से 13, 13 से 15 चले जाएंगे। फीडबैक तो आपका अच्छा है नहीं, फीडबैक तो अच्छा नहीं है। तो फिर ये वाली ग्रोथ जो यहाँ पे आपने दिखा दी है इतनी, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये ग्रोथ किस हिसाब से पॉसिबल है, किन बेसिस पे आपके पास नए क्लाइंट्स आएंगे? और फिर अगर तुम देखो तो मार्केटिंग कॉस्ट रिलेटिवली बहुत कम है, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम है, बहुत कम है। तो जो इतना डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड है, इतना डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड पे आपने मार्केटिंग की कॉस्ट इतनी कम कैसे लगा ली? वेरी लेस। फिर फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई इन्फ्लेशन नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता चला जा रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट बिल्कुल फ्लैट है? फिक्स कॉस्ट इज एक्सट्रीमली फ्लैट। कैसे मुमकिन है? किसी किस्म की कोई शॉक टेस्टिंग नहीं हुई कि अगर ये अजम्पशंस पूरी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? कोई सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं हुआ हुआ, व्हाट इफ एनालिसिस नहीं हुआ हुआ, कोई व्हाट इफ सिनेरियोज नहीं बनाया आपने यहाँ पे। सिर्फ एक एमपीवी निकाल के आ गए कहाँ ये अचीव हो रहा है। कॉस्ट की अजम्पशंस क्या है? ऑब्वियसली यही ना, मतलब कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा कैसे ले लिया आपने 55%, कॉस्ट इतनी कम कैसे हो जाएगी, किस तरह से होगा सारा हिसाब किताब? फिर ये टर्मिनल वैल्यू की क्या बेसिस है? चौथे साल में अगर 4,4973 का नंबर आ रहा है, तो सारे बाकी सालों का मिला के साल का सिर्फ 1,500 क्यों आ रहा है? टर्मिनल वैल्यू इज टू लो। व्हाई इज दैट सो? ये इतनी कम क्यों है? और पे बैक तो वैसे भी यहाँ पे आपका टारगेट मीट नहीं हो रहा, पे बैक के अंदर टारगेट ऑफ 3 years नॉट बीइंग मेट। जो आपका 3 साल का टारगेट है वो वैसे भी यहाँ पे मीट नहीं हो रहा। तो ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी काफी नहीं है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। आपको बाकायदा इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा। 3 कमेंट्स लिखे, 4 नंबर्स कैलकुलेट किए, एनपीवी निकाली, पॉजिटिव लाए, बोला ठीक है भाई इन्वेस्टमेंट कर दो बिजनेस के अंदर। कल कोई नहीं चल पाया तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या उसके हवाले से जो है वो सूरत हाल होगी। ये वाली चीज यहाँ पे लिखना, मेंशन करना जो है वो बहरहाल जरूरी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला एरिया भी मुकम्मल हो जाता है। ऑल राइट। अच्छा जी, कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज लाने के लिए, कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज लाने के लिए कौन कौन सी चीजें करनी पड़ती हैं, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए? एनी आइडियाज? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या एक्टिविटीज करनी होंगी कि वो बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, अपने बिजनेस को चेंज कर सके? हाँ भाई, एनीवन? अवीन, मोइस, कुछ कहना चाहोगे? जेनेरिक रोड मैप की तरह सोचो। ये जो अप्रोच इन्होंने यहाँ पे अपनाई है ना, ये वाली MIOBD, हमारे उसमें स्कोप में ये वाली अप्रोच नहीं है, लेकिन हम ये जनरल आंसर तो अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, ये वाला। ये नॉर्मल स्टेप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे क्या होंगी? स्टाफ ऐसा है जिसको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता, कस्टमर सर्वे इतना बुरा है, इनोवेशन है नहीं, R&D है नहीं, लीडरशिप का माइंडसेट वो है नहीं। तो क्या रोड मैप होना चाहिए? आइडेंटिफाई फीडबैक इन एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। सर सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम लाइज।
प्रॉब्लम है कहाँ पे, कहाँ इशू आ रहा है एग्जैक्टली। फर्स्ट असेस द प्रॉब्लम एरियाज, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद डिसाइड अबाउट द पॉसिबल सॉल्यूशंस, जो आपके मिशन को, विजन को, आपके ओवरऑल स्टेक होल्डर्स की एक्सेप्टेबिलिटी को मैच करते हो। उसका एसएफए एनालिसिस करेंगे। जो आप सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो सूटेबल, फीजिबल और एक्सेप्टेबल होगा आपके स्टेक होल्डर्स को। फिर उनके साथ कम्युनिकेट करें, मेक देम अंडरस्टैंड। अपने एम्प्लॉइज को, अपने स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को उनके साथ कम्युनिकेट करें, मेक देम अंडरस्टैंड। और फिर ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए। ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू, इस ग्रेजुअल प्रोसेस में आपको चेंज एजेंट की भी जरूरत पड़ेगी, आपको लोगों की काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, आपको लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी का टाइम भी देना पड़ेगा, आपको उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर काम भी करना पड़ेगा, आपको उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम भी करना पड़ेगा। आपको उनको ये ट्रस्ट दिलाना होगा दैट वी आर नॉट फायरिंग यू, हम आपको जॉब से निकाल नहीं रहे हैं, आपके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं ताकि आप आगे चल सकें। बिल्कुल। एप्लीकेशन ऑफ लेवल और जेमिनाइज चेंज मॉडल्स, चेंज मॉडल्स को आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई करें। चेंज मॉडल्स को आप यहाँ पे जो है वो बहरहाल अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद ओवरऑल पर्सपेक्टिव में उनको कैरी आउट करें। ये पूरा एक प्लान है जो 7 8 10 पॉइंट्स में आप लोग इंशाल्लाह ताला यहाँ पे डिस्क्राइब करके अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला सवाल भी जो है वो मुकम्मल हो जाता है, और इसके साथ साथ हमने कॉन्सेप्ट्स का भी रिवीजन कर लिया और इसकी प्रैक्टिस भी कर ली।